Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, guys. I am here Zainab Siddiqui, and I am represent a chapter which belongs to class 5 and chapter number 7 from English Literature, chapter number 7. And this page number is 86, and this chapter is a trip to Kolkata. ठीक है? The chapter name which I prescribed is written in this board here also. So guys, this chapter's name is A Trip to Kolkata. So first I have to read this chapter and you have to listen it very carefully and don't interrupt within this chapter. ठीक है? So first is read and enjoy. Traveling is the best form of education. It helps us a person know so many things about life easily and joyfully, and the present lesson is travelogue will enable you to know how many things about Kolkata, its people, its culture. It's an ideal place to visit, especially during the school winter break and summer vacation. अंडरस्टूड. सो ट्रैवल जो है एजुकेशन का बेस्ट फॉर्म होता है. एजुकेशन का बेस्ट फॉर्म किस लिए होता है? क्योंकि हम लोग उसमें डिफरेंट जगहों में जाते हैं और डिफरेंट जगहों पे जाके उसे एंजॉय करते हैं, सीखते हैं. बहुत सारी चीज़ें उनसे आप गैदर कर सकते हैं. ओके. तो ये जो प्रेजेंट चैप्टर है अ ट्रिप टू कोलकाता, ये चैप्टर जो है आपका एक ट्रैवलॉग है. ट्रैवलॉग किसका है? आई थिंक इसमें रमेश है जो ट्रैवलॉग कर रहे हैं, जो कोलकाता में जा रहे हैं और ये ट्रैवल जो कर रहे हैं. तो ये इस वजह से ट्रैवल कर रहे हैं कि ये आपको बता रहे हैं कि वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा. ठीक है. लेट्स रीड इट अगेन फ्रॉम द पेज नंबर 87. ठीक है. पेज नंबर 87 निकालिएगा. अब उसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ. द ट्रेन स्ट्रीच टू द हार्ट एंड Raj got down the Howrah station with his parents and younger brother Ramesh. They hired a taxi and were soon on their way to Jodhpur Park. This was their first visit to Kolkata. Raj's grandfather is settled down in Kolkata after his grandparents retired this year back. Raj and Ramesh watched throngs of people hurrying, passing vehicles crawling by, and their taxi moved ahead. Suddenly, the Howrah Bridge appeared. A large view of Raj pulled his father's sleeve. Look at such huge bridge. Huge bridge is this like this one. Okay. Ratnesh Biswas, which his father explained to him, this Howrah Bridge is built on river Hooghly and taxi crossed the bridge. While it continued, Howrah Bridge was open traffic for 1943. Okay. So guys, this chapter, A Trip to Kolkata, some important points. Howrah Bridge open for traffic in the year of 1943. Okay. So it was officially called Rabindra Setu after the name of the beloved poet Rabindra Tagore. ठीक है. Ramesh said that I like this bridge. Meeta, their mother, remarked during our stay will visit many other places. The next day, cross the Eden Garden. Eden Garden. What is the Eden Garden? What is the Eden Garden? Meeta pointed towards the famous stadium and said the young cricketers that Eden Garden since love cricket so must have watched many matches on television. Eden Garden is a stadium in which cricketers cricket on that day.
Okay, so in this page, which is page number 87, so in this page, here we understand that Ramesh, Raj, his elder brother Ratnesh and Meeta go to the travel a trip to कोलकाता। कोलकाता के लिए जाते हैं वो लोग, और उसके बाद वहाँ पास वो लोग न्यू प्लेसेस देखते हैं। अभी तो आपने पढ़ा ना कि ट्रैवल करने से आपको एजुकेटिव इन्फॉर्मेशंस भी मिलते हैं, तो उन्होंने भी एजुकेटिव इन्फॉर्मेशंस गैदर की हैं। ठीक है, वहाँ उन्होंने अभी तक 2 प्लेसेस देख लिया है जब वो लोग ट्रैवल कर रहे थे कार से अपने, तो 2 प्लेसेस उन्होंने देख लिया है। अभी पहला प्लेस है दिस हावड़ा ब्रिज। ओके, पहला प्लेस है हावड़ा ब्रिज और दूसरा प्लेस है ईडन गार्डन। ठीक है, हावड़ा ब्रिज कब ओपन हुआ था ट्रैफिक के लिए, यानी कि नॉर्मल पीपल्स के लिए, ये 1943 में। ठीक है, और ईडन गार्डन जो है जिसमें क्रिकेटर्स जो हैं क्रिकेट खेलते हैं। ओके, सो द ईडन गार्डन, पॉइंट नंबर 2 इज the Eden Garden established in 1864. Okay, Eden Garden कब बना था? 1864 को बना। Now we will shift it to the next page, which is page number this one. Okay, page number 88. Page number 88. Okay. So Raj and Ramesh was shouted that क्या मुझे यहाँ खेलने मिलेगा? वो लोग, उनके फादर ने कहा नहीं, यहाँ अभी आपको खेलने नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेलते हैं। ठीक है, उनके लिए ये ओपन होता है। Now here is the 2 things which Raj and Ramesh still travel. The first thing is Howrah Bridge and the second one thing is Eden Garden. Okay. Now this thing, now the last thing, which is Victoria Memorial. They also cross with Victoria Memorial. Ratnesh said their children come here. We have to come here tomorrow, and Raj was outstruck. He said that, what is that? Ratnesh replied that it is a Victoria Memorial. They proceeded for their grandparents, grandma, and very glad to have them in home. They greeted each other warmly. Ratnesh and Meeta inquired about their health. Grandmother brought delicious sweets to them, especially about this traditional sweet Bengali for you all, like Rasgulla and Sandesh. Okay, now everyone relished them, and Ratnesh choked, Grandma, I like them. And they all had fish curry, steamed rice for lunch, delicious traditional preparation made by grandmother, and they passed quickly. They planned to go to the dinner. Everyone enjoyed eggs rolls, Mughlai paratha, followed the ice cream. Ramesh were astonished to see the tram. They all went to the ride, and tram returned home quite late. The next day, the family visited to the Victoria Memorial and then the majestic structure in the Kolkata Maidan and vast urban park. So here student, we have learned 3 things, 3 important things we still learn. The first one is Howrah Bridge, second one is Eden Garden, and the third one is Victoria Memorial, which is open in 1921. So student, Raj and Ramesh learn 3 things about 3 things when they go for travel. ठीक है, the first one is Howrah Bridge, second one is Eden Garden, and the third one is Victoria Memorial. हावड़ा ब्रिज जो है ओपन हुआ था 1943 को। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कब ओपन हुआ था?
1864 को। एंड सॉरी, ईडन गार्डन कब ओपन हुआ था? 1864 को। एंड विक्टोरिया मेमोरियल कब ओपन हुआ था? 1921 को। सो स्टूडेंट, राज और रमेश जो है विक्टोरिया मेमोरियल उनके फादर के साथ कल जाते हैं, ठीक है। फादर ने कहा था कि वो उन्हें कल भेजेंगे, तो कल जाने से पहले उन्हें, वो तो क्योंकि घूमने आए थे, तो जब वो घूमने आएंगे तो वो किसी के भी तो प्लेस में रुकेंगे ना, होटल या किसी के हाउस में, तो वो अपनी ग्रैंड माँ के हाउस में रुकते हैं। ग्रैंड माँ उनके ग्रीटिंग्स के लिए उनके लिए कुछ कुछ खाने को बनाती हैं, जैसे कि उनको रसगुल्ला, संदेश, जो कोलकाता का स्पेशलिटी था, स्पेशल फूड था, वो उन्हें खाने को देती हैं। नाउ फिश करी और स्टीम राइस जो ग्रैंड माँ ने खुद बनाया था, वो उन्हें सर्व करती हैं। और वो दोनों बच्चे बहुत खा के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद आता है। नाउ दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ, यानी रत्नेश और मीता के साथ कहाँ जाते हैं? विक्टोरिया मेमोरियल देखने। विक्टोरिया मेमोरियल बहुत खूबसूरत था। विक्टोरिया मेमोरियल जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, और बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा। वो क्या चीज़ से बना हुआ था? वाइट मार्बल से बना हुआ था। एंड विक्टोरिया मेमोरियल जब वो बना था, तब से लेकर आज तक वहाँ क्वीन विक्टोरिया जो है उस वक्त वहाँ रहती थी। इसी वजह से उनके नाम के वजह से इसे विक्टोरिया मेमोरियल्स कहा जाता है। और विक्टोरिया मेमोरियल्स जो हैं वो वाइट मार्बल से बना है, पूरा वाइट, एकदम वाइट। ओके, नाउ वी विल हैव टू शिफ्ट टू द पेज नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, विच इज, सी स्टूडेंट्स, page number 89. So all of you take out your page number 89. Now we have to read this page and understand what they are saying. Okay, so they took keen interest in all that was displayed, and Ramesh smiled and said that I like it. Then Raj laughed at him, and family relaxed some time at Kolkata Maidan and watched groups of children and grown-ups playing cricket. They visited to Birla Platinum next. Okay, so children, अभी तक हम लोग जो हैं 3 आइटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आइटम के बारे में पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है कि राज और रमेश जो है विक्टोरिया मेमोरियल से बाहर आ जाते हैं। वो बहुत जो वहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो सब चीज़ देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड नाउ दे आर रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम ऑन कोलकाता मैदान, एंड देन दे मूव टू द बिरला प्लानिटेरियम। बिरला प्लानिटेरियम एक प्लानिटेरियम है जो कि जिसे हम लोग हिंदी में तारामंडल भी कहते हैं। ये प्लानिटेरियम आपकी जीके की बुक में मेंशन रहते हैं। ये प्लानिटेरियम जो है एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लानिटेरियम, सबसे बड़ा प्लानिटेरियम है, ठीक है। और जो है ये रमेश जो है बताता है कि देखो वो स्टार्स जो ऊपर में दिख रहे हैं ना, वो देखो ये स्टार्स जो दिख रहे हैं, ये स्टार्स जो हैं ये सरफेस पे दिखते हैं, ताकि ये जो इसके इनर सरफेस पे देखते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। एंड देन they explain about the stars, planets, outer space, and then they move to happily back. And at night grandparents narrate them fairy tale मतलब जो आप लोग अपने दादा दादी से सुने होंगे ना, जब आप लोग सोने जाते हो तो आप लोग सुनते होंगे फेरी टेल्स, लाइक परियों की कहानी। तो वही रत्नेश और रमेश के ग्रैंड पेरेंट्स भी सुनाते हैं परियों की कहानी। एंड देन दे मूव टू द मीता और रमेश जो है वो दूसरे मॉर्निंग जाते हैं ओल्ड बाज़ार, ओल्ड मार्केट और न्यू मार्केट में जाते हैं, जहाँ पास से
मीता जो खरीदती है वो कॉटन की साड़ी होती है जो उसे बहुत प्यारी लगती है, और रत्नेश जो है टेरिकॉटा आइटम्स खरीदता है डेकोरेशंस के लिए, और अपने फादर के लिए एक वॉकिंग स्टिक खरीदता है क्योंकि उसके फादर जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनके लिए खरीदता है। और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड मदर्स को वो लोग टच करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, और फिर उसके बाद वो स्टोरीज जो है फिनिश हो जाती है। ठीक है, नाउ वी विल शिफ्ट टू द पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 में हम लोग जो है अब मूव करेंगे। अब जो है रमेश और रत्नेश जो हैं अब वो लोग आ गए हैं। अब वो लोग मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं, रेलवे के बारे में जानते हैं, और यहाँ बस वो मेट्रो ट्रेन में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग महसूस करते हैं। और फिर वो लोग लेट नाइट घर आते हैं। राज जो है बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, और अपने पापा को हग कर लेता है एक, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होता है और वो लोग स्टेशन जाते हैं, गुड बाय सबको कहते हैं, गुड बाय कहते हैं, और फिर वो लोग मीता और रत्नेश जो है एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग कोलकाता के अलावा और भी जगह घूमने जाएंगे। वी विल विजिट अदर प्लेसेस इन कोलकाता ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रिप। हम लोग नेक्स्ट ट्रिप जब आएंगे तो कोलकाता में और भी जगह बस घूमेंगे, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशली इतने ही तो नहीं है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। अब इसके हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।